علیکم ناظرین، گفتگو پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان تہمینہ وسیم۔ آج کے پروگرام گفتگو میں ہم بات کریں گے تعلیم کے حوالے سے۔ تعلیم کے حوالے سے حکومت نے کیا کردار ادا کیا، سرکار نے کیا کردار ادا کیا، اسپیشلی پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب میں کتنے سکول ہیں ایسے جو پیف کے انڈر آ رہے ہیں یا جو آ رہے ہیں گورنمنٹ کے انڈر، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور بات کی جائے اگر وزیر اعلیٰ پنجاب یعنی شہباز شریف صاحب کی، تو انہوں نے ہمیشہ سے تعلیم کو ترجیح دی ہے۔ بات کی جائے ایجوکیشن کی، مختلف سکولوں کی، تو آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے سے زیادہ اس میں ترقی بھی ہو رہی ہے، فیسیلیٹیشنز بھی پرووائڈ کی جا رہی ہیں، مختلف اداروں میں مختلف سکولز میں کام بھی کیا جا رہا ہے۔ کچھ عرصہ قبل یعنی کچھ عرصہ پہلے کی اگر ہم بات کریں تو سرکاری سکولوں کے حالات و واقعات آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں اور عوام بھی جانتی ہے، جہاں پر پینے کا پانی موجود نہیں، جہاں پر کمرے موجود نہیں، اگر گرمیوں کی بات کی جائے تو پنکھا ایک سہولت ایسی جو بہت ضروری ہے وہ بھی وہاں پر موجود نہیں۔ لیکن بات کی جائے اگر اس ٹائم کی تو بہت سی چینجز آ گئی، بہت سے اچھے کام ہوئے ہیں۔ ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں بیسکلی پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے حوالے سے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن یعنی پیف یہ ہے کیا، اس حوالے سے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے جو چیئرمین ہیں ان کا میں آپ کو تعارف کراؤں گی اور ان سے ہم بات کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا کردار ادا کیا ہے، جو اسپیشلی اسٹوڈنٹس جو تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہیں، جو یوتھ ہے، ان کے جو کام آ رہی ہیں، ان کی قربانیاں، ان کا کردار، پوزیٹیو کردار، کیا کیا کام کیا ہے، یہ تمام آپ کو دکھایا جائے گا۔ پہلے دیکھنے ہیں ایک رپورٹ۔ کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں تعلیم کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ پاکستان میں آج لاکھوں بچے غربت اور شعور کی کمی کے باعث تعلیمی اداروں سے باہر نظر آتے ہیں۔ ان بچوں اور بچیوں کی بڑی تعداد خطرناک مشقت پر بھی مجبور ہے۔ یہ بچے اور بچیاں بٹھا کشت، فیکٹریوں، زراعت، گھروں اور ورکشاپوں سمیت دیگر مقامات پر نظر آتے ہیں۔ ایسے میں وفاق اور صوبائی حکومتیں بچوں کو تعلیم کے زیور سے راستہ کرنے اور چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے کئی منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ ان میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جیسے ادارے قابل ذکر ہیں۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کام کر رہی ہے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہزاروں تعلیمی اداروں کی مالی معاونت کر رہی ہے، جس کے باعث وہ لاکھوں بچوں کو مفت تعلیم دے رہے ہیں۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اداروں کی مالی معاونت کے ساتھ مفت کتب بھی فراہم کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ادارہ اساتذہ کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی کام کر رہا ہے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اسسٹنٹ پروگرام، نیو اسکول پروگرام، ایجوکیشن واچر اسکیم، سی پی ڈی پی اور پی ایس ایس پی کے نام سے مختلف منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ ان میں چورستان پروجیکٹ بھی شامل ہے۔ پروگرام گفتگو کے لیے کامران ساکی، رائل نیوز، لاہور۔ ناظرین، یہ آپ نے دیکھی رپورٹ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے حوالے سے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرمین کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے میں آپ کو ان کا تعارف کروانا چاہوں گی۔ چیئرمین آف چیف منسٹر اسپیشل سیل کے بھی ہیں، ممبر آف دا پنجاب اسمبلی بھی ہیں اور پیف کے چیئرمین بھی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ نام ان کا ہے انجینئر قمر الاسلام راجہ صاحب، ایم پی اے بھی ہیں، چونکہ تو یقیناً سیاست میں بھی کردار ادا کیا ہے، تعلیم کے شعبے میں بھی آپ کو بتایا۔ چلتے ہیں ہم قمر اسلام راجہ صاحب کی طرف اور ان سے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ موسٹ ویلکم۔ بات کریں گے سب سے پہلے ہم انجینئر صاحب سے کہ پیف اپنے الفاظ میں، سمپل ورڈز میں بتائیے کہ پیف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیف کی اگر بات کی جائے تو آج سے چند برس پہلے پیف پنجاب کا، پاکستان کا ایک ادارہ تھا، لیکن اب اس وقت جو پیف ہے یہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ، اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے ان چند اداروں میں شاید ہے جس کو کہ دنیا اس وقت ریکگنائز کر رہی ہے، دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے۔ جہاں بھی تعلیم کی بات انٹرنیشنل فورم پہ ہوتی ہے تو وہاں پہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ایز اے کیس اسٹڈی اسے دیا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا کی یونیورسٹیز میں یہاں کی پیف کی پرفارمنس کی بات تو میں بعد میں کروں گا، لیکن میں صرف اس وقت جسٹ فار لیول آف کمفرٹ آف جو ناظرین ہیں ان کے لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت دنیا کی یونیورسٹیز میں پیف کو ایز اے ریسرچ سبجیکٹ، پیف کے ایک ایک پروگرام پہ ڈاکٹریٹ اور ان کی جو ریسرچ ہے وہ ایز اے سبجیکٹ آفر کیا جا رہا ہے۔ یہ دنیا بھر سے ہمیں یورپ کی اور امریکہ کی یونیورسٹی سے یہ ہمیں فیڈ بیک آ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم بات کریں گے کچھ استاد کے حوالے سے، یعنی ٹیچرز کے حوالے سے۔ استاد کی فلاح و بہبود اور تنخواہ کے پیکج کے لیے پیف کیا اقدامات کر رہی ہے، کیا کردار ہے پیف کا؟
دیکھیں جب استاد کی بات ہوتی ہے تو استاد کیونکہ ہب ہے ایک تعلیمی ادارے کا، لیکن پیف کا جو ماڈل ہے اس میں یہ بیسیکلی پبلک پرائیویٹ کوآپریشن ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. پیف کا رول میں سمپل الفاظ میں لوگوں کی ایک عام لے مین کی سمجھ کے لیے میں گزارش کروں گا. پیف کا رول ایک والدین کا رول ہے. جس طرح ایک والد جب اپنے بچے کو تعلیم دلاتا ہے تو وہ 3-4 چیزیں دیکھتا ہے. وہ ٹیچر کی تنخواہ نہیں دیکھتا کہ اسکول میں اس ٹیچر کو کتنی مل رہی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ اسکول اس قابل ہے کہ میرا بچہ جائے، اسکول کا جو معیار ہے پڑھائی ہے وہ اس قابل ہے. وہ پھر اسے مانیٹر کرتا ہے کنٹینیوسلی کہ کہیں اس اسکول میں پڑھائی کا معیار دن بدن کہیں کم تو نہیں ہو رہا. تو دس از ایگزیکٹلی واٹ پیف ڈز کہ پیف اس وقت 25 لاکھ بچوں کو ایز وی ٹاک ٹوڈے 25 لاکھ بچے پنجاب کے وہ پیف کے توسط سے فری تعلیم اور فری کتابیں حاصل کر رہے ہیں. کہاں سے؟ پرائیویٹ اسکول سے. ہم اپنے ان 25 لاکھ بچوں کو پرائیویٹ اسکولز میں بھیجتے ہیں اور ان پرائیویٹ اسکولز کو ویسے کوئی لائسنس نہیں دیا جاتا کہ آپ ان کو پڑھائیں. ہم ان کا پہلے ایک پری ٹیسٹ لیتے ہیں، ابتدائی ٹیسٹ لیتے ہیں کہ یہ اس معیار کا ہے. وہ جب اس ٹیسٹ کا رزلٹ آتا ہے اس کے بعد ہم اس اسکول کو اپنے پینل پہ لیتے ہیں. اس اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی فی ہم پے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو کتابیں دیتے ہیں. تو یہ وہ ماڈل ہے بیسیکلی پیف کا. تو ہمارا پیف آؤٹ پٹس میں ہم ہوتے ہیں. ہر سال اس اسکول کا امتحان ہوتا ہے اور اس میں جو منیمم رزلٹ ہے ہمارا وہ 55% اور 67% ہے. اپنا 75% اور 67% ہے کہ اگر وہ 75% سے کم بچے پاس ہوں گے ان کی پورٹریٹ کرے گا تو وہ اسکول کو ہم اپنے پرماننٹلی ڈی ایف لسٹ سے باہر ہو جائے گا. یہ اس کا معیار ہے اور یہ سالانہ امتحان ہر دفعہ ہوتا ہے اپنا پیف کا. اور جو اسکول ٹوائس فیل ہو جائے، 2 دفعہ لگاتار فیل ہو جائے، وہ پھر ڈی ایف ہو جاتا ہے. تو کوالٹی ایشورنس بھی ہے. سائز آپ دیکھ لیں کہ 25 لاکھ بچے مینس 25 لاکھ شاید دنیا میں 100 سے زیادہ ممالک ہیں جن کی آبادی نہیں ہے. تو یہ دنیا میں سب سے بڑا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. اچھا، آپ نے جس طریقے سے راجہ صاحب بتایا کہ آپ لوگ خود بچے کا جو ہے یقیناً اس کا رزلٹ بھی چیک کرتے ہیں اسکولز کا اور بچوں کی فی جو ہے وہ بھی آپ لوگ خود پے کرتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ پرائمری لیول پہ کیا فی اسٹرکچر ہے جو آپ لوگ پے کرتے ہیں؟ جو ہمارا رورل ایریاز میں ہمارے اسکول چونکہ پری ڈومیننٹلی دور دراز اور رورل ایریاز میں جہاں پہ ایک عام لو کاسٹ پرائیویٹ اسکول کی فیس جو ہے وہ 400-500 روپیہ پر منتھ، 300 بھی ہے. بالکل ہے، بالکل. تو یہ آپ جب یہ آپ دیکھیں تو آپ ویژولائز ایلیٹ اسکولس کو نہ کریں. یہ وہ اسکولس ہیں تو وہاں پہ ہمارا جو فیس اسٹرکچر ہے وہ 550 سے شروع ہو کے تو یہ کوئی 1200 تک. اچھا، پرائمری سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ عوام کے شعور کے لیے بات کی جا رہی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ پرائمری لیول پہ آپ نے 500 بتایا، 550 سیکنڈری لیول پہ؟ سیکنڈری لیول کا ہمارا شروع ہوتا ہے جب 550 سے شروع ہوتا ہے، پھر 650. اس کا سیکنڈری لیول کا 1000 سے لے کر 1300 روپے ہے ڈیپینڈنگ اپون ہائر سیکنڈری اور ان کے سائنس آرٹس مختلف ٹیئرز. بالکل ٹھیک. چولستان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی میں آپ سے. جس طریقے سے چولستان کی بات کی جائے تو ایک کانسیپٹ ہے، ایک سٹوری، ایک حالات و واقعات، ایک ایسے مناظر ذہن میں آتے ہیں جس کو سن کر دیکھ کر انسان، ہم جیسے لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں جن کے پاس تمام سہولتیں موجود ہیں، چولستان کا نام سنا جائے کہ ایک عجیب و غریب سا نقشہ ذہن میں آتا ہے. چولستان میں بھی پیف نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. اس حوالے سے عوام کو بریف کیجیے گا. دیکھیں، یہ چولستان اس ملک کا ایک حصہ ہے جو لاکھوں ایکڑ پہ پھیلا ہوا ہے اور چولستان از رچ ان لائف اسٹاک. لائف اسٹاک کا ایک بہت بڑا جو ہے خزینہ ہے ہمارے ملک کا. لیکن بدقسمتی سے پورے چولستان میں تعلیم کا سرے سے ایک تو ہوتا تعلیم ہونا، تعلیم کا کانسیپٹ ہی نہیں. تو پہلے پیف نے کوئی 75 اسکولس پیریفری آف چولستان میں اڈاپٹ کیے اور ان میں اس وقت کوئی 10,000 کے لگ بھگ بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں. یہ میں 2014 کی جہاں سے چولستان میں پیف کے رول کی ہسٹری شروع ہوتی ہے. اس کے بعد پھر جب 2015 میں ڈیپ ڈیزرٹ میں ایک دفعہ گیا کہ وہاں پہ دیکھوں کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں. تو وہاں پہ چونکہ خانہ بدوش لوگ ہیں، فیملیز ہیں، وہ لائف اسٹاک ان کی ہوتی ہے اور ان کی لائف پانی کے گرد گھومتی ہے. پانی کا ایک تالاب ہے جو نیچرل تالاب ہے، بارش سے بھرا گیا. جس دن اس تالاب میں پانی ختم ہونے لگتا ہے تو وہ موو کرتے ہیں ٹو نیکسٹ تالاب جو کو 20
30 किलोमीटर दूर है, तो जाहिर है वहाँ पे ना बिल्डिंग बन सकती है, रेत है, और ना कोई और, तो वहाँ पे फिर उन बच्चों के लिए कोई तालीम नहीं। वो साथ चल पड़ते थे फैमिली के, किसी क्लैन में 40 बच्चे हैं, किसी में 20 हैं, किसी में 50 हैं, तो they are continuously on move and their movement depends upon availability of water. ठीक है, हमने वहाँ पे मोबाइल स्कूल्स का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें कि टीचर सेटल्ड इलाके से जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट भी पैक उसको देता है, ठीक है, फोन भी देता है, और वो सुबह अपने सेटल्ड एरिया से निकलता है, उस जगह पे जाके स्कूल लगाता है, एक गोपे में या किसी छांव में, और बच्चों को दिन को पढ़ाता है, और फिर उसके बाद वो स्कूल के बाद वापस आ जाता है। मोबाइल इस तरह है कि जब वो उस टोबे में पानी खत्म होगा, वो फैमिली अनाउंस करेगी कि अब हमने यहाँ से फ्लड जाना है, ठीक है, तो नेक्स्ट डे वो वहां जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये मोबाइल है, यानी जहाँ जहाँ वो क्लैन फैमिली मूव करती है, स्कूल उसके साथ मूव करता है, और ये साल के 12 महीने एक्सेप्ट दो समर वेकेशंस जो, तो ये इस वक्त हम 30 स्कूल मजीद उसमें खोलने जा रहे हैं, ठीक है, इसके लिए साइट्स आ गई हैं, 10 हमारे चुलिस्तान में ये मोबाइल चल रहे हैं, तो 30 इंशाल्लाह अगले गर्मियों की छुट्टियां चूंकि आ रही हैं, तो हमने बाकी प्रोसेस कर ली, तो गर्मियों की छुट्टियों के फौरन बाद इंशाल्लाह वो चल। अच्छा ये भी बताइएगा राजा साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि हमने ट्रांसपोर्ट भी वहाँ पर मुहैया की है, ट्रांसपोर्ट में क्या दिया? मोटरसाइकिल 1 to 5 जो होते हैं, अच्छा, तो वहाँ पे 4 व्हील ड्राइव चल सकती है, उसके तमाम अखराजात हुकूमत ने बर्दाश्त किया, हुकूमत, ठीक है, तो हुकूमत पंजाब का फंडेड अदारा है, ठीक है, बेसिकली हमारा ज्यादा जो हिस्सा है 90% फंड पंजाब हुकूमत देती है, तो एक ऑटोनमस अदारा है, और ये वो जो सुर्ख फीता रवायती होता है सरकारी, उसका चूंकि पाबंद नहीं, हमने फैसला किया कि पैक में स्कूल खोल लें, हमने अपने सिस्टम के तहत टीचर भर्ती करके मोटरसाइकिल खरीद के उनको चला दिया। अब वो सरकार में चूंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से वो देर हो जाती है, मसलन हमने अभी चीफ मिनिस्टर ने हमें टारगेट दिया कि आपने एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए 2700 स्कूल खोलने, तो हम उस 2700 में से अप्रैल के महीने के अंदर कोई 1000 के लगभग नए स्कूल पंजाब के दूर दराज इलाकों में इस वक्त खुल चुके हैं, 1.5 महीने। ठीक है, बिल्कुल ठीक। बात करेंगे हम कुछ पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के सूबा पंजाब के हवाले से। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन सूबा पंजाब के जनूबी हिस्से में ज्यादा काम करती नजर आ रही है। ये बताइए कि पैफ के ज़ेरे इंतजाम कुल टोटल स्कूल हैं कितने? इस वक्त जो चूंकि प्रोसेस लगातार स्कूल्स का बन रहा है, तो एग्जैक्ट फिगर इसलिए कि आज भी कल तकरीबन कोई 150 स्कूल्स के साथ पार्टनरशिप साइन हुई है, जो कल के दिन में ठीक है, इसी पैफ के दफ्तर में एक शामियाना लगातार पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से लोग पार्टनरशिप साइन करने आ रहे थे, तो इसी तरह आज भी वो प्रोसेस जारी है, लेकिन ये सेफली कोई तकरीबन हम 13,000 के टोटल 13,000 से शायद ऊपर चले गए, ठीक है, हमारे पंजाब में स्कूल से। और ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम है, यानी कोई और सिस्टम 13,000 स्कूल भी चला रहा, तो कुछ चंद 100 भी चला रहा हो तो वो। कमरुल इस्लाम राजा साहब ये भी बताइएगा, मजीद के स्कूलों से पार्टनरशिप के इंतखाब का आपका तरीकाकार क्या है, वे क्या है? वो जैसे मैंने आपसे अर्ज की कि जो तो हमारा न्यू स्कूल प्रोग्राम है, उसमें तो हम बुनियादी चीजें मानते हैं कि पहले मरहले में उसके 3 कमरे होंगे, उसके टीचर होंगे, लेकिन सब्सिक्वेंटली आफ्टर पैसेज ऑफ 1 or 2 years फिर हम उसको पूरे बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। वो बस पैफ के 80% से ज्यादा स्कूलों में मल्टी ग्रेडिंग नहीं है, ठीक है, एक क्लास के लिए एक उस्ताद है, हर क्लास के लिए एक उस्ताद है, हर क्लास के लिए एक क्लासरूम है, ठीक है, ये नहीं है कि एक उस्ताद 2 क्लासों को पढ़ा रहा है, ठीक है। लेकिन जो न्यू स्कूल प्रोग्राम में या ईवीएस में हमारे दूर दराज इलाकों में नए होते हैं, तो स्टार्ट भी हम उनको 2 या 3 कमरों से शुरू करते हैं, लेकिन वो फिर अगले 1, 2, 3 सालों में। अच्छा थोड़ा सा जरा कतई कलामी के लिए माजरत चाहूंगी, थोड़ा सा यहाँ पर मुझे डिटेल में बताइएगा कि स्टार्टिंग आपने बताई कि 3 कमरों से स्टार्ट ले लेते हैं, न्यू स्कूल प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। अब ये बताइएगा मुझे टोटल के क्या पैफ को सिर्फ हुकूमत पंजाब ही फंडिंग करती है या कोई प्राइवेटली तौर पर भी फंडिंग का सिलसिला है? बेसिकली तो प्राइमरीली तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वसातत से डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो है डिफरेंट जिसे बोलते हैं DFID, जो बेसिकली यूके गवर्नमेंट का अदारा है, ठीक है, वो हमें कोई तकरीबन हमारे एंटायर बजट का कोई 10% के लगभग, ठीक है,
وہ جو ہے وہ بھی ہمیں فنڈ کرتا ہے. یہ دو ہمارے پرائمری گورنمنٹ کی طرف سے کتنا فنڈ آپ کو ایک سال کے لیے یا 6 ماہ کے لیے آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کتنے ٹائم کے لیے دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ آپ کا یہاں سے یہاں تک اتنا فنڈ ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو اوور آل گورنمنٹ کی ول بتا دوں کہ جب 2008 میں حکومت آئی ہماری مسلم لیگ کی تو اس وقت پنجاب کا کل بجٹ جو تھا ایجوکیشن کا وہ کوئی 60-62 ارب روپے تھا. ٹھیک ہے. تو جہاں پہ باقی چیزوں میں بھی محکموں میں بجٹ بڑھے وہاں پہ یہ پنجاب کے تعلیم کے بجٹ میں گزشتہ 7-8 برس میں کوئی 6 گنا اضافہ ہوا. بالکل ہوا. 600% آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو تقریباً کوئی 350 ارب کے لگ بھگ. اسی طرح پیف کا جو بجٹ تھا وہ 1 ارب سے کم تھا اس وقت جب ہوا. پیف کچھ اضلاع میں کام کر رہی تھی. آج پنجاب کے 36 اضلاع میں پیف آپریٹو ہے. ٹھیک ہے. اس کا بجٹ جہاں پہ تعلیم کے باقی بجٹ 6 گنا اضافہ ہوا وہاں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے بجٹ میں کوئی تقریباً 20 سے زائد گنا اضافہ ہوا. 20 ٹائمز. ٹھیک ہے. اب ہم جو اس دفعہ بجٹ جو ہمارا اپنا 17-18 کا جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں حکومت دے گی وہ تقریباً 25 ارب کے لگ. اچھا یہ آپ کو اتنا زیادہ کیوں ملا؟ کیا کردار دیکھ کر سچویشن دیکھ کر کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں اگر آپ کسی محکمے کی سکسیس ریٹ دیکھیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سائز 2014 میں جب میں پیف میں آیا تو اس وقت ہمارے کچھ اسکول 3500 کے لگ بھگ تھے. ٹھیک ہے. آج ہم 13,000 1991 سے لے کر 2014 تک جو تھے وہ 4,000 سے کم تھے. ٹھیک ہے. تو اگلے 2.5-2.25 برسوں میں ان میں 3 گنا اضافہ ہوا. تو obviously اس کے ساتھ جب آپ پرفارم کرتے ہیں اور جب پرفارمنس ہے تو یقیناً بہتری ہے. انٹرنیشنلی تھرڈ پارٹیز انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اس کو ریکگنائز کرتی ہیں وہ ویریفائی کرتی ہیں تو پھر obviously حکومت ایسے اداروں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. حکومت نے بجا طور پہ پیف کی جو ہے وہ ہاتھ رکھا پشت پہ اور پیف کو بھرپور طریقے سے یعنی پیف کے بجٹ کو ٹاپ پرائرٹی پہ لیا جاتا ہے کیونکہ پرفارم کیا ہے پیف نے. کوالٹی میں بھی پرفارم کیا ہے, انرولمنٹ میں بھی پرفارم کیا ہے. ہر حوالے سے پیف کی پرفارمنس جو ہے وہ اور پیف نے دلوں پہ اس طرح خرچہ نہیں کیا. آپ اندازہ کریں کہ ہماری جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے پیف کی وہ کوئی ٹوٹل بجٹ کا 4% بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی 96% ہم ایکچوئل اپنے اس پہ خرچ کرتے ہیں جبکہ یہاں پہ ایسے ادارے بھی ہمارے ملک میں دنیا میں موجود ہیں جو جس کام کے لیے بنتے ہیں اس پہ 20 یا 30% خرچ کرتے ہیں اور 70% اپنے آپ پہ خرچ کرتے ہیں. اکاؤنٹ میں جاتا ہے. نہیں اپنے آپ پہ سے مین یہ نہیں کہ وہ بدلتی مطلب اپنے آپ سے مطلب یہ کہ تنخواہیں پیرافرنیلیا ہیومن ریسورس بلڈنگز اس پہ خرچ کرتے ہیں ان کا بجٹ. تو ہمارا جو ہے وہ 96% اسٹوڈنٹس پہ خرچ ہوتا ہے اور صرف 4% بجٹ جو ہے وہ باقی ایکٹیویٹیز. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. کمرول اسلام راجہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طریقے سے ہر ادارے کا آڈٹ بھی ہوتا ہے تو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا آڈٹ کیسے ہوتا ہے, کیا طریقہ کار ہے, کتنے عرصے بعد ہوتا ہے؟ اس حوالے سے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن تھوڑا بدقسمت واقع ہوئے کیونکہ اس کے سارے وہ آڈٹس ہوتے ہیں جو سرکاری اداروں کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آڈٹ والے تو سارے ہوتے ہی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان ایڈیشن ٹو اٹ جو ہمارا اپنا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے وہ بڑے اسٹرینجنٹ آڈٹس وہاں پہ ہوتے ہیں انٹرنل ایکسٹرنل اسپیشل پرفارمنس جو کہ رینوڈ ادارے جو دنیا کے آڈیٹر فرمز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی وہ کرتی ہیں جن کو دنیا میں یعنی بڑا سخت ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے افسران اکثر یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارا ہر وقت کوئی نہ کوئی آڈٹ چل رہا ہوتا ہے. ہمیں جو ہمارا کام کرنے کی بھی وہ کئی دفعہ متاثر ہوتی ہے کیونکہ آڈٹ کی وجہ سے آڈیٹرز کے پاس بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایک عام سرکاری ادارے کے جو آڈٹس ہیں وہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو آڈٹس میں نے آپ کو گنوائے کہ جو ہمارے ادارے کو سبجیکٹ ہم نے وہ خود اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کا یہ سسٹم پیف نے انٹروڈیوس کیا اور یہ غالباً وہ واحد ادارہ ہے کہ جو ہم اپنی آڈٹ رپورٹس بھی جو ہے ہماری اینول رپورٹس میں وہ ساری جو ہے ہماری ویب سائٹ پہ ہیں. ہماری جو پرفارمنس اینول رپورٹس ہیں وہ ویب سائٹ پہ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. اس میں اگر کوئی ویکنس ہے تو وہ بھی کوئی دیکھ سکتا ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ نے شو کی ہوئی ہے نظر آ رہی ہے. ایکسٹینٹ آف نیم آف آفیسرز اور ان کی اسائنمنٹ تک ویب سائٹ پہ موجود
बिल्कुल ठीक है। आपने ये भी बताइएगा कमरुल इस्लाम राजा साहब, जिस तरीके से बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, तो हर स्कूल में एडिशन डिफरेंट है, बुक्स डिफरेंट है, कोई ऑक्सफोर्ड की पढ़ा रहा है, कोई कहाँ की पढ़ा रहा है, कोई पंजाब की पढ़ा रहा है। तो क्या पेफ के अंडर जो स्कूल्स आते हैं उसमें कोई खास आपकी तरफ से बंदिश है या इदारे की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट है कि नहीं यही वाला कोर्स पढ़ाना है? हमारे पास एक ही सिलेबस है जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का सिलेबस है, ठीक है, वो फेयरली डेवलप्ड करिकुलम है, बिल्कुल। और उसको हमने, क्योंकि मैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का भी बोर्ड मेंबर हूँ, तो हमने वहाँ पे भी देखा है कि उसको भी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। आज से चंद बरस पहले तक जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें टेलीग्राफ किताबों में मौजूद था, ठीक है, जो तार होती थी सिस्टम, तो अब उसको अपडेट किया गया है मौजूदा हालात के मुताबिक। तो ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का सिलेबस यूनिफॉर्मली हमारे तमाम स्कूलों में और हुकूमत के भी तमाम स्कूलों में वही पढ़ाया जाता है। पेफ का मॉडल किसी गैर मुल्क से नकल किया गया, ये खुद एक रोल मॉडल है? नहीं, इसको गैर मुल्क नकल कर रहे हैं, बल्कि उनका नकल करने का, यानी आपको कर रहे हैं लोग। ये इनहेरेंट यहाँ का मॉडल था। यहाँ के जब तक के लोगों ने जो इसके फोरफादर्स थे, जब उन्होंने इसे डिजाइन किया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो दुनिया में ये मॉडल इससे पहले कहीं मौजूद नहीं था। अब अलबत्ता ये हो रहा है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, बिलखुसूस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, उनके डोनर्स हमारे मॉडल को वहाँ पे कॉपी करने के सिलसिले में हम उनको रहनुमाई भी कर रहे हैं। बल्कि सूबों के हवाले से अगर बात की जाए तो पिछले दिनों कुछ चंद माह पहले की बात है, सूबा के ये जो हमारा ही एक मुल्क का अजीज तरीन हमारा सूबा है, वहाँ से सेक्रेटरी एजुकेशन और उनकी जो एजुकेशन फाउंडेशन उन्होंने बनाई है, वो यहाँ पे आए थे और हमने उनको पूरी गाइडेंस दी, पूरी ब्रीफिंग दी, और वो पेफ के इस पंजाब के मॉडल को KPK में रेप्लिकेट करने जा रहे हैं। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जो है वो सिर्फ हमें अब फॉलो कर रही है, हमें कॉपी कर रही है, उनका पहले मैनेजमेंट मॉडल था, वो इस मॉडल पे जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान जो हमारा एक इंडिपेंडेंट, उनके चीफ मिनिस्टर से भी मेरी कुछ अर्सा पहले मुलाकात हुई, हमने उनको तमाम अपने सैलिएंट फीचर्स दिए, ठीक है, JK में उसको करने की। तो ये अब दुनिया के दीगर हमारे सूबे और दुनिया के ममालिक इसको कॉपी कर रहे हैं। बलूचिस्तान की क्या सिचुएशन है? बलूचिस्तान में भी अभी रिसेंटली चूंकि जो एजुकेशन एंडोमेंट फंड था उसमें तो चीफ मिनिस्टर ने स्पेशल अपने पंजाब के हिस्से में से उनके बच्चों के लिए फंड मुकर्रर किए, तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी इसको फॉलो करने, क्योंकि कुछ जोग्राफियाई हालात ऐसे हैं दूर दराज और बहुत जो प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन स्टिल वो भी बहुत इंटरेस्टेड है कि वो पंजाब को मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। कमरुल इस्लाम राजा साहब, ये भी बताइएगा कि पब्लिक स्कूल सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूलों को पेफ के हवाले किया गया है, क्या ये प्रोग्राम इन स्कूलों में मौजूद असातिज़ा की सरकारी मुलाजमत पर असरअंदाज होता है? बिल्कुल नहीं हुआ जी, ये एक शदीद किस्म की गलतफहमी थी जो पैदा की गई थी एक टाइम पे, और वो बाकी उस वक्त एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, जब ये PSSP का प्रोग्राम डिजाइन किया गया उस वक्त जो सब कमेटी बनी उसका मैं ही चेयरमैन था। ठीक है, उसमें हमने उसी कमेटी की रिकमेंडेशन में लिखा था कि किसी उस्ताद की शराइत मुलाजमत या नौकरी मुतासर नहीं होगी, बल्कि वो उस्ताद तो आसानी होगी उनको कि ये जो स्कूल थे ये तो उनके वर्स्ट स्कूल थे, जिन्हें आप कह सकते हैं कि उस मिक्स की रॉटन चैरिटी 53,000 पंजाब में पूरे स्कूल है, उसमें से ये जो 5,000 स्कूल थे ये वर्स्ट स्कूल थे, एक तो इनका रिजल्ट 0 to 10% था। आप अंदाजा करें कि 5 साल बच्चे 20-30 बच्चे एक स्कूल में पढ़ते रहे, ठीक है, 5वीं का इम्तहान दें और सारे फेल हो जाए, ठीक है, अब वो गरीब वालिदैन उन्हें कहाँ लेके जाएंगे? ये वो स्कूल थे। दूसरा, एनरोलमेंट वाइज ये वर्स्ट स्कूल थे, एनरोलमेंट 25, 30, 35 से ऊपर बावजूद कोशिश के नहीं बढ़ रही। ठीक है, तो ये जब पेफ के हवाले किए गए तो सबसे पहला फैसला ये हुआ कि इन असातिज़ा को उनकी चॉइसेस प्लेसेस में से, वो 3 चॉइस रहेंगे, ठीक है, उनको वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो वो जो असातिज़ा इससे पहले किसी सजा का खतरा उन्हें होता था कि रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो वो तो बच गई इस मुश्किल से, और वो मुश्किल तरीन चैलेंज पेफ ने कबूल किया। और ये दुनिया में फिर हिस्ट्री है, केस स्टडी है कि दुनिया में कहीं पे भी इतनी बड़ी तादाद में स्कूल्स को पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की तरफ नहीं ऐसा मुराजियत हुई। और सबसे भी बड़ी बात यह है कि वो 1 साल के अंदर उसके जो रिजल्ट्स हैं वो ये हुआ कि एनरोलमेंट उनकी डबल से ज्यादा हो गई है, बल्कि कुछ स्कूल तो हमें हैंड ओवर हुए 6 महीने में, जो सितंबर में आए थे। ठीक है, इससे पहला जो बैच था 1,000 का वो 1 अप्रैल
करवाया था। दूसरी बात यह है कि उनका रिजल्ट वो हमने इम्तहान लिया, पैक ने लिया, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने, ठीक है, जहाँ उनका रिजल्ट 0% से लेकर हाईएस्ट 10% था, उनका जो भी इम्तहान हुआ, ये भी 1 महीना पहले भी 3 हफ्ते पहले पैक का रिजल्ट आया, तो वो 70 और 75% एवरेज पे चले गए, 85% रिजल्ट वाले भी इस PSSP में मौजूद है। ठीक है, यानी 0% से रिजल्ट 70% पे जाना ये कोई कम मामूली बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। पैफ की टीम पूरा पैफ और बिलखसूस जो हमारा PSSP डिपार्टमेंट है, उसमें उनकी कमिटमेंट, उनकी मेहनत और मैं खसूसी तौर पे मैं समझता हूँ कि वो खराज तहसीन के मुस्तहिक। आते हैं पैफ के कयाम के बुनियादी मकसद की तरफ। पैफ के कयाम के बुनियादी मकसद ही गरीब बच्चों को में मुफ्त तालीम बांटना है, मुफ्त तालीम देना है। लिहाजा पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने तालीम को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स बनाए। उन प्रोग्राम्स का मैं एक एक का नाम लेती जाऊंगी, आप मुझे उसके बारे में थोड़ा सा जरा आसान अल्फाज में बताइए जाए ताकि आवाम को शऊर आ सके। फाउंडेशन असिस्ट स्कूल क्या है ये? वो स्कूल है कि जिसमें पढ़ने वाले तमाम बच्चों की फीस, यानी वो पूरा स्कूल उसमें जितने 700 पढ़ रहे हैं उसकी फीस हम अदा करें। ठीक है, उसमें ये फर्क है। दूसरा हमारा जो EVS प्रोग्राम है, एजुकेशन वाउचर स्कीम, ठीक है, ये हम बहुत ही जो गरीब तरीन इलाके होते हैं, जो मुख्तलिफ हमें ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स या वहाँ से जो हमें पॉवर्टी इंडिकेटर्स मिलते हैं, वहाँ पे हम हाउस होल्ड सर्वे के जरिए गरीब तरीन फैमिलीज को एक वाउचर देते हैं। कैश इसलिए नहीं देते कि वो कहीं कैश खा जाए, बच्चे को स्कूल ना भेजें, कहीं और इस्तेमाल कर लें, की मजबूरी होती है। और वो वाउचर बेसिकली एक चेक होता है, वो वाउचर स्कूल में लेके जाते हैं, फीस की जगह वाउचर दे देते हैं और वो फिर हम रीइंबर्स स्कूल को कर देते हैं। ये पेमेंट चेक की शक्ल में एक किस्म का करते हैं। हमारा न्यू स्कूल प्रोग्राम है, ये हमारा उन जगहों पे हम स्कूल बनाते हैं जहाँ पर 1 किलोमीटर की रेडियस में गवर्नमेंट का या पैफ का स्कूल नहीं है, वहाँ के बच्चे मुफ्त तालीम से महरूम हैं। तो ये बहुत ही हमारा चैलेंजिंग प्रोग्राम है, जिसके तहत हमने इस साल के अंदर अब 2700 स्कूल खोले और ये दूर दराज एरियाज में, यानी उन गाँव, उन बस्तियों में, चाहे वो चोलिस्तान में, चाहे किसी और जगह जहाँ पे कोई स्कूल नहीं मौजूद है। ठीक है, ठीक है। दूसरा जो एक पैफ का चौथा PSSP प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया, फिर हमारा एक और प्रोग्राम है जो हम सिर्फ खाली फीसें नहीं देते, हम उन स्कूलों के टीचर्स की ट्रेनिंग्स भी करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल बेसिकली टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, उसमें हम हेड टीचर्स की और टीचर्स अपने उन स्कूलों में पढ़ाने वालों की ट्रेनिंग भी करते हैं और उनकी सर्टिफिकेशन भी करते हैं। ट्रेनिंग देके उनको टेस्ट देके उनको सर्टिफिकेट पैफ की तरफ से इशू होता है। अगर वो पैफ के स्कूल में नहीं भी पढ़ा तो वो किसी जगह जाएगा तो वो कंट्रीब्यूट ही करेगा, यानी तालीम ही बांटी है ना, तालीम ही देनी है उसने। ठीक है, तो ये हमारा एक मॉनिटरिंग का एलेबोरेट सिस्टम है कि पूरे स्कूल्स की मॉनिटरिंग होती है, उसमें हेड काउंट की कहीं ये तो नहीं कि वो स्कूल वाला बच्चा फीस ज्यादा ले। अच्छा, थोड़ा सा जरा मुझे डिटेल में मॉनिटरिंग के हवाले से बताइएगा कि आप लोगों का मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट भी है, आपने भी बताया कि मॉनिटरिंग होती है, तो क्या ये खुद जाके मॉनिटर करते हैं या कैमरास हैं, क्या सिस्टम क्या है? मॉनिटरिंग तो ये नहीं, बेसिक हमें कंसर्न क्या है कि फर्स्ट किया हम 25 लाख बच्चों की फीस दे रहे हैं, ठीक है, तो हम 500 बच्चों की फीस दे रहे हैं कि 500 बच्चे पढ़े, ठीक है, आया वहाँ पे 500 हैं, कहीं 495 तो नहीं, ठीक है। तो वो है सबसे पहली बात तो ये है कि उन बच्चों का हमारे पास जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें 25 लाख बच्चों की न सिर्फ डिटेल्स, ID कार्ड नंबर, नाम, वल्दियत, बल्कि तस्वीर भी मौजूद है। ठीक है, तो वो टैबलेट के साथ मॉनिटर जाता है, वो टैबलेट खोल के तो कहता है जी क्लास 10, हाँ जी, किधर है मोहम्मद अख्तर, किधर है मोहम्मद अजमल, ठीक है। वो एक पूरी वेरिफिकेशन और ये बड़ी स्ट्रिंजेंट क्योंकि होती है और इस पे स्कूल्स कैंसिल हो जाते हैं अगर कोई बच्चा ना हो। ठीक है, हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम हमारी बैकबोन है जिसकी बुनियाद पे हम सक्सेसफुली परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात ऐड करूंगा कि पैफ बेसिकली जो पैफ का बुनियादी मकसद था तो वो उसने इट हैज बीन ए रोडिंग सक्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड, वो ये था कि हम ब्रिक और मोर्टर से, ईंट और गारे से बाहर निकलें। इससे पहले यह है कि मसलन हुकूमत को स्कूल बनाना पड़े तो पहले जमीन खरीदेगी, फिर उसके बाद वहाँ पे टेंडर होंगे, बिल्डिंग बनेगी, टीचर भर्ती होंगे, ठीक है, 2-3 साल लगते थे और हो सकता है वो स्कूल परफॉर्म ना करे। ठीक है, तो ये हम ईंट गारे से निकल आए। मसलन मैं आपको एक मिसाल दूं कि ये 25 लाख बच्चे हैं, अगर ये हुकूमत के निजाम में पढ़ते तो 25 लाख बच्चों के लिए आपको 1 लाख के लगभग क्लास रूम चाहिए। ठीक है, तो 1 लाख क्लास रूम की खाली अगर आप कीमत देखें तो ये एग्जैक्टली
250-300 अरब रुपया बनता है। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कि पैफ की जो कंट्रीब्यूशन है वो सोसाइटी में तो है ही है, लेकिन हुकूमती खजाने की तरफ भी है कि इसने एक इकोनॉमिक मॉडल दिया, क्वालिटी दी और सस्ता तरीन मॉडल दिया, एफिशिएंट तरीन मॉडल दिया जिसको दुनिया तस्लीम कर। बिल्कुल ठीक है। एक मासूमाना सा सवाल का जवाब दीजिएगा कि पैफ में और सरकार में क्या फर्क है? पैफ में और सरकार में मैं आपकी अगर टर्मिनोलॉजी में जवाब जी, तो वही है कि जो पीटीवी में और आपके चैनल्स में है कि वहाँ पे पैराफर्नेलिया ज्यादा होता है। यानी आपको मैंने जैसे बताया कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 4% है, ठीक है, जो कि किसी सरकार में नहीं है। तो बीइंग ऑटोनमस बॉडी वो कि हुकूमत का अदारा है, लेकिन हुकूमत ने फैसला साजी के तमाम इख्तियार इस अदारे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिए, ठीक है। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आज कहता है कि ये यूं कर रहे हैं और उसके हालात के मुताबिक, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है बेसिकली वो इसकी सक्सेस की वन ऑफ द मेन कॉजेज हैं। अब आवाम के शऊर के लिए कमरुल इस्लाम राजा साहब ये भी बताइएगा, टाइम जरा मुख्तसर है तो मैं चाह रही हूँ कि जरूरी सवाल जो है वो आपसे पूछे जाएं। एक इंसान है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक स्कूल खोलना चाह रही हूँ, मुफ्त बच्चों को तालीम देना चाह रही हूँ, क्या तरीकाकार होगा? उसके लिए पहला तो ये होगा कि आप स्कूल खोलेंगे, क्योंकि पैफ का बुनियादी मकसद किसी को रोजगार देना या किसी को, पैफ का बुनियादी मकसद तालीम है। बिल्कुल। यानी कोई बंदा कहे कि मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे पास जरिया माश नहीं है, तो पैफ का ये मकसद नहीं। बिल्कुल। तो हम तो ये देखते हैं कि वो जो स्कूल आपने खोला है या चल रहा है, अगर वो हमारे डिजाइन एरिया के अंदर फॉल करता है और हमारे डिजाइन क्राइटेरिया के अंदर फॉल करता है, आपको क्वालिटी दे रहे हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, आप उस इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं जहां हमारी जरूरत है, ठीक है, तो फिर हम जब एडवर्टाइज करते हैं, अखबारों में इश्तिहार आते हैं, तो उस पर हजारों के हिसाब में एप्लीकेशन आती हैं जिसमें से हम बेस्ट का चुनाव करते हैं। जिस तरीके से आपको नाज़रीन बताया गया कि पैफ यकीनन एक इदारा है, एक कामयाब इदारा है, तरक्की कर रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है, आगे आवाम में शऊर दिया जा रहा है, बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही है और बड़ा एक शफाफ सा अंदाज है, शफाफ सा तरीकाकार है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स भी इसके हैं, जिस पर मैं चाहूंगी कि आपको कुछ मनाजिर भी हम दिखाएं चोलिस्तान के हवाले से, कि चोलिस्तान में जिस तरह से पैफ ने अपना किरदार अदा किया, वहां पर जो किरदार अदा किया गया, स्कूलों का सिस्टम क्या है, ट्रांसपोर्ट की बात की गई। कमरुल इस्लाम राजा साहब ने बताया कि हमने मोटरसाइकिल्स भी दी हैं लोगों को ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा तालीम जो है वो दी जाए। तो ये तमाम मनाजिर भी आपको हम आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। अब मैं चाहूंगी कुछ टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से बात करना। कमरुल इस्लाम राजा साहब ये बताइएगा कि टीचर्स को ट्रेनिंग देने का जो आपका तरीकाकार है क्या है? हमारी टीचर्स की ट्रेनिंग का तरीकाकार भी उतना ही चैलेंजिंग है जितना पैफ इटसेल्फ। ठीक है। ये कोई टीचर ट्रेनिंग कोई हॉल्स में या कोई बड़े शहर में एयर कंडीशन हॉल में नहीं होती। हमारी टीचर्स ट्रेनिंग क्लस्टर्स में उन देहातों में जाके होती है। 5 से 7 स्कूलों का एक क्लस्टर बनाया जाता है, वो सारे स्कूल्स के टीचर्स वहां आते हैं और उस क्लस्टर को हमारा मास्टर ट्रेनर जाके मल्टीमीडिया की मदद से जदीद तरीन जो आलात हैं सनात और बसारत के, उनकी मदद से वहाँ पे ट्रेनिंग्स होती हैं। फिर हमारी हेड टीचर्स की ट्रेनिंग है जिसमें कि हेड टीचर्स को स्कूल कैसे मेंटेन करना, उसका कैसे डाटा करना, वो ट्रेनिंग्स होती हैं। इसके बाद हमारी एक और दिलचस्प ट्रेनिंग है जिसे हम कैंप बेस्ड ट्रेनिंग कहते हैं। एक और हमारी जो ट्रेनिंग है वो ये है कि हम वो टीचर जिस सब्जेक्ट में, एक फर्स्ट एक स्कूल है जो 2 या 3 साल से मैथ का उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो वहां पे एक मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उस स्कूल में चला जाता है, ठीक है, वो 1 साल वहां पे रहता है, ठीक है, 1 साल वो न सिर्फ क्लास को पढ़ाता है बल्कि वो साथ 2 या 3 टीचर्स को उस क्लास में बैठा के उसे मैथ में ट्रेनिंग दे के, तो नेक्स्ट ईयर वो जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है वो किसी और वीक रिजल्ट वाले स्कूल में चला जाता है। उसकी तनख्वाह ठीक है हम देते हैं, नहीं स्कूल वाले का उस पर कोई बोझ नहीं होता, यानी वो पैफ अदा करता है। ट्रेनिंग भी उतनी ही अछूती और इतनी अनोखी है जिस तरह के पैफ का अपना हो। ये बताइएगा राजा साहब कि जिस तरीके से आपने टीचर्स ट्रेनिंग का सिलसिला बताया, इनकी कोई टाइमिंग्स होती है कि टीचर ट्रेनिंग में 6 माह टीचर को ट्रेन करना है, साल करना है, 2 माह करना है? ड्यूरेशन वो तो साल वाली तो अभी एक मैंने आपको ठीक है, ये ऑलरेडी जो कि टीचर्स मेजॉरिटी वो हैं जिन्होंने बीएड या सीटी और एजुकेटेड ऑब्वियसली तो है, लेकिन हमारी जो ट्रेनिंग्स होती हैं ये ज्यादातर
5 दिन या 7 दिन ओवर वीक होती हैं, लेकिन वो 9 to 5 होती हैं। ठीक है, तो ठीक है। वो टीम जाती है और वो इनफ ट्रेनिंग होती है, उसमें सारी बुनियादी चीजें उनको देती है। पहला ट्रेनिंग 1 का एक स्टेज होता है, फिर स्टेज 2 भी होता है उन स्कूलों को, और ये कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस जारी रहता है। यानी ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के अंदर एवरी 3 years ठीक है, ईच एंड एवरी टीचर इज ट्रेन। यानी टारगेट ऐसे ठीक साइकिल है, चल रहा ठीक है, ठीक है। 3 साल में हर एक स्कूल का टीचर ट्रेन होता है, फिर वो साइकिल दोबारा चलना है। सेकेंडरी के हवाले से, प्राइमरी के हवाले से, मिडिल के हवाले से आपने हमें फीस स्ट्रक्चर भी बताया कि पेफ जिस तरीके से अदा करता है एक स्टूडेंट का। तो अब ये बताइएगा कि किसी का स्कूल है पेफ के अंडर है या पार्टनरशिप पर है पेफ के साथ, तो स्कूल के जो ऑनर है क्या वो भी कुछ ना कुछ चार्ज कर सकते हैं या करते हैं? कोई ऐसे शिक नुक्ता है? बिल्कुल नहीं, उसमें बल्कि हमने जो हर स्कूल के आगे वाज़े तौर पे बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, इसकी स्टेटमेंट ये है कि बल्कि पहले ये स्टेटमेंट होती थी कि यहाँ पर मुफ्त तालीम दी जाती है। ठीक है। तो मैंने 2014 में वो बोर्ड्स की स्टेटमेंट चेंज कराई, मुफ्त नहीं दी जाती, उसमें लिखा हुआ यहाँ पढ़ने वाले हर बच्चे की फीस पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन अदा करता है। ठीक है। ताकि वो बच्चा किसी फीलिंग या एहसास कमतरी के तहत न जाए कि शायद ये बंदा मैं कोई खराबी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, ये स्कूल वाला मुझे मुफ्त, बच्चा एतमाद से जाए कि हाँ मेरा पीछे कोई है, हुकूमत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरी फीस अदा करता है। ठीक है। उसके तहत नीचे लिखा होता है कि यहाँ किसी भी मद में, किसी भी मद में, यानी इवन आप कह सकते हैं एग्जामिनेशन फी, पेपर, किसी मद में एक पैसा भी वो वसूल नहीं कर सकता। उस पे हम स्कूल कैंसिल कर देते हैं अगर हमें कोई इत्तला या शिकायत मिले और वो साबित हो जाए कि इवन 10 रुपए भी किसी मकसद, किसी फंक्शन, किसी तकरीब के लिए दिए, तो इस हद तक किसी भी हवाले से वो पैसे नहीं दे सकते। जिस तरीके से आपने स्कूलों की तादाद बताई कि लगभग 11 से 12,000 स्कूल जो है वो पेफ के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, ये बताइएगा कि टोटल टीचर्स की कितनी तादाद है ओवरऑल? ये टीचर्स की चूंकि फिगर्स नहीं है क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल अंदाजे के मुताबिक मूविंग और ये वो, लेकिन मैंने कम से कम भी अगर पेफ के टीचर्स की तादाद है तो वो 2 लाख के लगभग जरूर है जो हमारे फिगर्स में रिफ्लेक्ट होती है, जो काम कर रहे हैं, उस पे मौजूद होती है हमारे उस पे डाटा बैंक में। ठीक है। वो ऑफ एंड ऑन कोई छोड़ रहा होता है क्योंकि परमानेंट टीचर्स उन स्कूलों में नहीं होते। मसलन एक बच्चे ने मास्टर्स किया तो पढ़ाया, फिर उसे एमफिल में दाखिला मिल गया, वो आगे चला गया, तो ये प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स रीशफल होते रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भी बताइएगा कि मुख्तलिफ स्कूल हैं, मुख्तलिफ जगहों पर हैं, चोलिस्तान का भी आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में खाका खींचा कि जिस तरीके से वहां पर भी काम हो रहा है, तो मुख्तलिफ स्कूल के जो ऑनर्स हैं उनके साथ आपकी डायरेक्ट मीटिंग कोई साल में एक दफा, 6 महीने में होती है? एक दफा तो पक्की होती है, उसे हम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन मीटिंग कहते हैं। ठीक है। मैं हर जिले में और कई दफा डिवीजन में, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द स्कूल्स वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ जाते हैं, वो पूरा दिन होती है और उसमें 2 वे कम्युनिकेशन होती है। वो अपने मसाइल बयान करते हैं, हमने जवाब देते हैं, उनको तमाम बताया जाता है कि अभी क्या आइंदा प्रोग्राम आने वाले हैं, किस तरीके से आपने करना है, तो उसे DCM बोलते हैं। और ये सालाना इंटरेक्शन 2 वे कम्युनिकेशन, ठीक है, होती है। आप कभी खुद स्कूल्स में गए, खुद विजिट किया कि आज मैं खुद जाता हूँ और किसी को पता भी ना चले चेयरमैन साहब आए या खुद विजिट किए? बहुत जरूरी इस मॉनिटरिंग का है कि आप किसी को आंसरेबल ठहरा ही नहीं सकते जब तक आप खुद फील्ड में निकले। ठीक है। तो जाहिर है यही तो वो प्रेशर होता है इवन मैनेजमेंट पे और पेफ के मॉनिटरिंग स्टाफ पे भी कि किसी लम्हे भी, मतलब हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर कई दफा यहाँ से निकल के तो हो सकता है सुबह वो रहीम यार खान में या डीजी खान में हूँ या मैं मुजफ्फरगढ़ में हूँ, और वहाँ पे फिर हम लोकल लोगों को नहीं इतला करते। और जब वो वही बेसिकली ड्राइव है जो कि पेफ को चला रही है, जो कि मेहनत है ओवरऑल मैनेजमेंट इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर्स, मैं खुद भी इस पे काफी, यानी जब तक आप अकाउंटेबिलिटी हो नहीं सकती तब तक आप उसको जरा विजिलेंट तरीके से और चाबक और कैरेट ठीक है, इस्तेमाल जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ट्रस्ट के हवाले से बात करना चाहूंगी। आजकल अक्सर देखा गया है, न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान की हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे स्कूल हैं जो 1 कमरे पे या 2 कमरे पर मुश्तमिल होते हैं और कहा यह जाता है जी ये ट्रस्ट का स्कूल है और यहाँ पर मुफ्त तालीम दी जाती है। ऐसे स्कूल भी हैं आपके साथ अटैच? कोई NGO का, तो ट्रस्ट का? ट्रस्ट के स्कूल्स हैं हमारे पास। वो ट्रस्ट या वो NGO 2 कमरों के तो हर नहीं है हमारे, जो हमारे 3 आपने तो बताया ना, 3 कमरों का जो स्कूल मैंने बताया या 2 के, 10 से 15% वो स्कूल्स हैं जो कि न्यू स्कूल प्रोग्राम के, ठीक है, ठीक है, हमारे 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो FAS प्रोग्राम में पढ़ते हैं।
यानी 25 लाख में से कोई 18-19 लाख FAS में, जहाँ पर कोई मल्टी ग्रेडिंग सिरे से है ही नहीं, ठीक हर है, बच्चे को अलग क्लासरूम है। सही। ये जो न्यू स्कूल प्रोग्राम जब किसी एक दूर दराज की बस्ती में जहाँ पे है ही 35 घर, तो वहाँ पे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहाँ कुछ 6 कमरों वाली बिल्डिंग, वहाँ पे एग्जैक्टली सारे घर ही एक एक कमरे वाले हैं, ठीक है, वहाँ पे 2 या 3 कमरों से स्टार्ट होता है। लेकिन जो जो उसमें तादाद बढ़ती है और हम उसको फंडिंग करते हैं, उसे महाना जब लाखों रुपए मिलते हैं, तो फिर हम उसको साथ ये भी शरायत रखते हैं कि अब तुम अपनी बिल्डिंग बिल्ड करोगे और वो 2-3 साल 4 में वो फिर अपना प्रॉपर पैराफर्नेलिया बना। बिल्कुल ठीक। कमरुल इस्लाम राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम गुफ्तगू में हमने बात की कमरुल इस्लाम राजा साहब से, जो MPA भी हैं, चेयरमैन भी हैं PEF के, और इनके साथ जो गुफ्तगू की गई इंतहाई खुशगवार और इंतहाई एक इंफॉर्मेशन वाली गुफ्तगू की, जो कि आप लोगों के लिए एक शऊर है, आवाम के शऊर के लिए बेसिकली ये प्रोग्राम किया जाता है। चूंकि गुफ्तगू तो हमने की, आपने सुनी, और जिस तरीके से स्टार्टिंग में आपको रिपोर्ट भी दिखाई गई कि PEF बेसिकली है क्या, तो चोलिस्तान में किस तरह से काम हो रहा है और PEF के अंडर मुख्तलिफ स्कूलों में किस तरह से काम हो रहा है, वो तमाम मनाजिर भी आज के प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम के अंत पर आपको दिखाई जाएंगे, ताकि आपको मालूम हो कि PEF है क्या, और वो लोग जो तालीम मुफ्त देना चाहते हैं, जो सहारा मांगते हैं, वो राब्ता कर सकते हैं PEF के साथ। इसके साथ ही अपनी मेजबान तहमीना वसीम को इजाजत दीजिए।